Hallelujah. I just want to thank the Lord for this beautiful morning again because He has given us this time to worship Him in our houses. मैं परमेश्वर का एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ क्योंकि उसने हमें एक मौका दिया कि हम अपने घरों में बैठ के उसकी आराधना कर सकें। As our young people have been leading this worship, जिस तरह से हमारे ये जवान इस आराधना को चला रहे थे, and they have been singing so beautiful songs of encouragement, and at the same time also worshiping बड़े God. उत्साह के गीत गा रहे थे, साथ ही साथ परमेश्वर की आराधना भी कर रहे थे। I also want to encourage you this morning मैं तुम्हें उत्साह देना मांगता हूँ आज की सुबह, because it's really a very struggling period going on in our families, in our personal lives, and especially in our country. क्योंकि ये बड़ा एक संघर्ष का समय चल रहा है हमारे अपने निजी जीवनों में, हमारे कामकाज में और हमारे देश में। If you ask me personally, especially in my hometown, यदि आप मुझसे निजी तौर से पूछें तो मैं अपने शहर के बारे में आपसे कहूंगा, because lots of people who have returned back from that pilgrim from Shri Hazur Sahib, they belong to district Gurdaspur. क्योंकि बहुत से लोग जो तीर्थ यात्रा करके हजूर साहब से वापस आए हैं, उनमें से बहुत से लोग जो हैं वो गुरदासपुर जिले के हैं। And as they have placed in different schools and colleges, और उनको अलग अलग कॉलेजेस और स्कूलों में रखा गया है। and about 60 people have been placed in Bering College Boys Hostel. और हमारे बिल्कुल करीब बॉयज हॉस्टल है बेरिंग कॉलेज का, वहाँ पर तकरीबन 60 से 65 लोग रखे गए हैं। In R.R. Baba College and other places also, in Batala town. हमारे अपने शहर में बटाला में आसपास के कई कॉलेजेस में वहाँ से लाके लोग आइसोलेशन में रखे गए हैं। I know people are afraid of their sickness, of this disease, but we need to trust God at this time. शहर के लोग जो है वो बहुत डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, लेकिन हमें इस वक्त जो है प्रभु यीशु में विश्वास में बने रहना है। This is what today I'm going to share from the last book of the Bible, that's called Revelation, as I've been teaching previously. और आज मैं आखिरी किताब बाइबल की प्रकाश की पोथी है, उसमें से कुछ बांटने जा रहा हूँ। As we have been studying on chapter 2, जैसे हम दूसरे अध्याय में अध्ययन कर रहे हैं, and I want to say that this book is a really very, very important book to study on. और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बड़ी एक महत्वपूर्ण किताब है। And our study is going on a very serious subject. और हमारा जो अध्ययन चल रहा है वो एक बड़े गंभीर विषय पे चल रहा है। And today I have only 4 verses as I started last Sunday. और मेरे पास 4 आयतें हैं जो कि मैंने पिछले से पिछले इतवार शुरू की थी। That was on the 19th of April. 19 अप्रैल को शुरू किया था। And I want to continue from the same passage. और मैं आज उसी हवाले से शुरू करना मांगता हूँ। If we read only 4 verses, I left in between, and I promise that I will give you the meaning of 10 days. और मैंने आपसे ये कहा था कि मैं आपको वो 10 दिन के बारे में बताऊंगा। But when I was meditating upon this word, लेकिन जब मैं इस शब्द के ऊपर ध्यान मनन कर रहा था, you know, it always happens with me when I go for my quiet time and study deeply from the scriptures. जब मैं अपना एकांत में समय व्यतीत करता हूँ परमेश्वर के साथ और वचनों के ऊपर मनन करता हूँ, Then the Holy Spirit gives me relevant words from the scriptures which are always very encouraging for myself. पवित्र आत्मा मुझे कुछ ऐसे वचन देता है, शब्द देता है जो कि मेरे जीवन के लिए बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। So I want to share with all of you today. इसलिए मैं आज आपके साथ ये बांटना चाहता हूँ। You know, first of all, if we look into this 4 verses which we have been studying on, यदि हम इन 4 आयतों को देखें जिनके ऊपर हम अध्ययन कर रहे हैं, since it is only 4 verses, let me just read it quickly in English. रेफरेंस बता दो। Revelation chapter 2, प्रकाश की पोथी दूसरा अध्याय from verse 8 to 11, 8 से लेकर 11 तक, which means only 4 verses. सिर्फ 4 आयतें हैं। And it's written here, and to the angel of the church in Smyrna write, these are the words of the first and the last, who was dead and came to life. I know your affliction and your poverty, even though you are rich. I know the slander on the part of these who say that they are Jews and are not, but are a synagogue of Satan. I'll request Penny to read rest of the 2 verses, 10 and 11. 10 और 11 में ऐसे लिखा है, जो दुख
तुझको झेलने होंगे, इनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डलवा देने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी बने रहो, ताकि तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। Now, when we study these 4 verses, जब हम इन 4 आयतों को देखते हैं, first of all, let me say that there is a word at least 3 times described in 4 verses. That's death or dead. सबसे पहले मैं एक चीज जो बताना मांगता हूँ, एक शब्द है जो 4 बार इस्तेमाल किया है, वो है मृत्यु। Now, when I look into these 2 chapters up to verse 11, जब मैं 11 आयत तक देखता हूँ, in these 2 chapters, first and second, पहला और दूसरा अध्याय, Jesus is focusing very specifically on this death subject. यीशु मसीह जो है वो इस मृत्यु के विषय के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। Over and again, he is telling us, don't be afraid. वो बार बार ये कह रहे हैं कि डरो मत, डरो मत। I was dead, मैं मर गया था, and now I'm alive again. लेकिन मैं आज जीवित हूँ। Now, when we read about the church of Smyrna, जब हम स्मरणा की चर्च के बारे में देखते हैं, first of all, the meaning of Smyrna is bitter. अगर हम स्मरणा का अर्थ देखें तो स्मरणा का अर्थ है कड़वा। In Greek language, we can say it mar, इब्रानी भाषा में हम ये कह सकते हैं, यूनानी भाषा में ये कह सकते हैं मर, which means I believe that the same myrrh which was offered to Jesus Christ, ये शायद वही मुर है जो यीशु मसीह को दिया गया था सलीब पर, which means bitter. जिसका मतलब है कड़वा। Now here, Jesus starts from verse 8. He says, these are the words of the first and the last. यहाँ पर यीशु मसीह 8वें आयत से शुरू कर रहे हैं कि यही अंतिम, मैं प्रथम हूँ और मैं जो प्रथम और अंतिम है। It means that these words are coming from the word which I described last Sunday. The word means the God, the creator God. ये शब्द परमेश्वर से निकल रहे हैं, उस परमेश्वर से, उस शब्द से जो सब कुछ सृजने वाला है। And he says, who was dead and came to life. वो ये कह रहा है कि जो मर गया था लेकिन अब जीवित है। And then again he says in verse 10, the second part, be faithful until death. और 10वीं आयत में वही कह रहा है कि मृत्यु तक वफादार बने रहो, विश्वास योग्य And बने if we रहो। take verse 11, और हम अगर 11 आयत में आए, at the end of the verse it says, by the second death. और वहां पर लिखा है दूसरी मृत्यु। See, it means 3-4 times it is described about the death. 3-4 बार मृत्यु के बारे में लिखा गया है, Only about death. सिर्फ मृत्यु के बारे में। And these days we are just listening to the news about death. और आजकल हम जो खबरें सुन रहे हैं वो ज्यादा मृत्यु के बारे में, And we are death के बारे so में। much afraid of death. और हम इतने डरे हुए हैं मृत्यु से। And even we don't want to, I don't want to say how the people are afraid. They don't want to go to somebody's house. They don't want to have a cup of tea from anybody's house. They don't want to touch anyone. Oh, I should not have this coronavirus because they are afraid of death. मतलब इतने ज्यादा लोग आजकल दहशत में हैं, डरे हुए हैं कि ना किसी से कोई चाय का प्याला ले सकते हैं, ना किसी घर में जाते हैं, दूर दूर रहते हैं एक दूसरे से। See how this fear is troubling our souls. ये देखो कि किस तरह से ये डर जो है हमारी आत्मा को परेशान कर रहा है। But Jesus is encouraging us, so I just want to say all those things which I received from the Lord. लेकिन यीशु मसीह जो है हमें उत्साह दे रहा है और मैं तुम्हारे साथ वो बांटना मांगता हूँ जो प्रभु ने मुझे दिया। As I told, this church was suffering because of the persecution, जैसे मैंने बताया, स्मरणा का चर्च जो था वो सताया जा रहा था and they were going through a very bad poverty in their lives. और वो बड़ी गरीबी से होकर जा रहे थे, Because when they declined that they will not worship that king, क्योंकि जब उन्होंने कहा, इनकार कर दिया राजा की पूजा करने से, then they were going through this kind of persecution that they were not offered jobs. तो उनके ऊपर सतावट आ गई, उनके नौकरियां भी उनसे छीन ली गई, There was no employment for them. उनके लिए कोई रोजगारी नहीं थी। But when the word of God talks about the affliction of that poverty, लेकिन जब वचन जो है उस गरीबी के बारे में बात कर रहा है, because of the verse 9, I want to say it, I know your affliction and your poverty. जैसे 9वीं आयत में लिखा है कि मैं तुम्हारी दरिद्रता को जानता हूँ, Even though you are rich. तुम रईस हो, रिच हो। Now, how a Christian believer going through this kind of affliction of, say, about unemployment or having any poverty, how can he be rich? एक इंसान जो गरीब है, जो गरीबी से होकर जा रहा है, बेरोजगारी से होकर जा रहा है, उसे हम रईस कैसे कह सकते हैं? God knows about our affliction of poverty, he says. परमेश्वर हमारे क्लेश की दरिद्रता को जानता है, But at the same time, he is encouraging us that you are rich. लेकिन उसी समय वो साथ साथ ये भी कह रहा है कि तुम रईस हो। Now, have you ever thought about it that though we are going through sufferings,
we are really and literally are rich? क्या आपने कभी सोचा है कि चाहे हम क्लेश से होकर जा रहे हैं, दुखों से होकर जा रहे हैं, लेकिन हम फिर भी रईस हैं? Why? क्यों? Because they lived for eternal values. क्योंकि ये जो थे अनंत काल की वैल्यूज के लिए जी रहे थे. If you want to understand it very easily, that how we are rich while we are going through persecution or a sort of affliction, यदि आप ये जानना चाहते हैं कि आप रईस या धनी कैसे हैं जबकि क्लेशों से होकर जा रहे हैं, we need to understand chapter 1 of 1 Corinthians. तो हमें पहला कुरिन्थियन पहले अध्याय में जाना पड़ेगा. Only 4 verses would clarify that how we are rich. पहला कुरिन्थियन पहला अध्याय. You see, financially or as employers, they didn't have sufficient funds, sufficient money or enough money. जो एम्प्लॉयर्स थे, जो नौकरी दे रहे थे, उनके पास इतना पैसा नहीं था. And these people were unemployed too, who are the believers. और जो विश्वासी थे, जो एम्प्लॉयर्स थे, जो लोगों को नौकरी दे रहे थे, रोजगारी दे रहे थे, वो भी गरीब थे. Warren Wiersbe says in one of his studies that they were just like a beggar. वॉरेन विर्सबी एक लेखक है, वो ये बताता है कि ये लोग जो थे, ये भिखारियों के नाई थे. So how can you be a beggar and at the same time very rich? अब हम सवाल ये उठता है कि हम एक भिखारी होकर हम धनी कैसे हो सकते हैं? Now because they lived for eternal values. वो इसलिए क्योंकि वो अनंत काल की वैल्यूज के लिए जी रहे थे. Now this is what here it says, Saint Paul in 1 Corinthians chapter 1 verse 4 onwards. I'll request Penny to read it with us. पहला कुरिन्थियन पहला अध्याय. He says, I give thanks to my God always for you because of the grace of God that has been given you in Christ Jesus. मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता हूँ, इसलिए कि परमेश्वर का यह अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हुआ. The grace परमेश्वर का अनुग्रह which we didn't deserve, जिसके हम लायक भी नहीं थे, He gave it to us through His Son Jesus Christ. उसने वो हमें अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा दे दिया. We never deserved that forgiveness of sins. हम उस माफी के हकदार भी नहीं थे. We deserved hell, हमें नरक मिलना चाहिए था, but He gave us heaven लेकिन through उसने- His Son Jesus Christ. लेकिन अपने पुत्र के राही उसने हमें स्वर्ग दे दिया. So this was the first thing that made us rich. तो ये पहली चीज है जिसने हमें धनी बनाया. Now, today if we die, आज हम यदि मर जाएं, the Christian believers, the followers of Jesus Christ, certainly claim that we are going to heaven. विश्वास करने वाले जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, वो ये दावा करते हैं कि हम स्वर्ग में जाएंगे बस यीशु के Because साथ. the Bible says, क्योंकि वचन कहता है, he who has the Son of God, क्योंकि वचन कहता है कि जिसके पास पुत्र है, Son of God, परमेश्वर का पुत्र है, he has eternal life. उसके पास अनंत काल का जीवन है. You see, our source is the Bible. और हमारा जो इस ज्ञान का जो साधन है। जरिया है, वो वचन है, बाइबल है. The Bible. वचन है, बाइबल है. So this teaches us very clearly. सो बाइबल हमें बड़े साफ शब्दों में कहती है, So number one, we are rich because of Jesus Christ, because of His grace. हम धनी इसलिए हैं यीशु मसीह के द्वारा, उसके अनुग्रह के द्वारा. Then second thing he says, for in every way you have been enriched in Him. दूसरी चीज वो कह रहा है, इसलिए कि परमेश्वर के अनुग्रह में तुम मसीह में हर बात में, In every way हर बात में you have been enriched. तुम धनी बनाए गए हो. Now he explains further. तो आगे इस चीज को समझाता है. Then he says in speech वो कहता है कि बोली में, and knowledge of every kind. वचन में और सारे ज्ञान में धनी किए गए हो. He says in speech. वो कह रहा है कि वचन में. My wife is standing beside me. मेरी पत्नी मेरे साथ खड़ी है. As I always says that she retired as a professor. मैं हमेशा बताता हूँ कि वो रिटायर हुई एज ए प्रोफेसर. She's a qualified teacher. पढ़ी हुई है, पढ़ी लिखी है. I'm not a qualified teacher. मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा टीचर नहीं हूँ. But when I received the Lord Jesus Christ, लेकिन जब मैंने यीशु मसीह को अपने जीवन में कबूल किया, He started transforming me. उसने मुझे बदलना शुरू कर दिया. Slowly, He started transforming me. धीमे धीमे करके उसने मुझे बदला. The very first thing which I received was power in my speech. जो पहली चीज मुझे मिली, जो वरदान मिला, वो था कि मेरे जुबान में सामर्थ आ गई. Now, we don't want to brag about anything. हमें किसी चीज के ऊपर घमंड नहीं करना. I personally don't want to brag about myself. मैं अपने बारे में भी किसी बात की घमंड नहीं करना मांगता. I know when I give this example, लेकिन जब मैं ये मिसाल देता हूँ, it might become a little personal. ये हो सकता है ये निजी हो जाए. But this is the reality that the Lord gave me that power. He made me enriched
in speech. लेकिन एक सच्चाई है कि यीशु मसीह ने मेरे वचनों में सामर्थ भर दिया। Now, when I compare qualification, अगर पढ़ाई लिखाई की बात करें, she is far educated than my graduation. वो मेरे से ज्यादा पढ़ी हुई है। But after this speech, he also gave me knowledge because I started reading lots of things from the Bible and from other books. लेकिन वचन के बाद फिर उसने मुझे ज्ञान देना शुरू कर दिया, क्योंकि मैंने किताबें पढ़नी शुरू की। I didn't have enough money with me. मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं I था, was not very rich at that time. मैं कोई बहुत ज्यादा धनी नहीं था। But today I am rich because of the speech and because of the knowledge of the Lord Jesus लेकिन Christ. आज मैं धनी हूँ क्योंकि मेरे पास वचन है और ज्ञान है। Knowledge of the Lord Jesus Christ. यीशु मसीह परमेश्वर का ज्ञान है मेरे पास। So what he said in Revelation chapter 2, सो प्रकाश दी पोथी प्रकाशित वाक्य दूसरे अध्याय में क्या कहता है? when he says that I know your affliction, जो वो जब कहता है कि मैं तुम्हारे क्लेश को जानता हूँ, afflictions of poverty, क्लेश की दरिद्रता, but you are rich. लेकिन तुम धनी हो। See, the word of God says very clearly in 1 Corinthians chapter 1 परमेश्वर का वचन बड़े सफाई से कहता है पहला कुरिन्थियों that में, I've been enriched in speech and knowledge of every kind. 5वीं आयत में लिखा है कि Yeah, you just read it. उसमें होकर तुम हर बात में अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए। Oh wow, what a great blessing. ये कितनी बड़ी बरकत है। It's rich not in money but in spiritual things. हम हो सकता है बहुत ज्यादा पैसे में हम धनी नहीं हो, लेकिन हम और बहुत सी चीजों में धनी हैं। Today you ask from the rich people आज तुम धनी लोगों से पूछो where their money or their wealth stands. आज उनके पैसे उनका धन कहाँ है? Probably they'll say it's zero. आज उनके लिए वो जीरो हो गया शायद। No, but we have a blessing in Jesus Christ where Jesus said to the church of Smyrna, I know your complaint, I know your afflictions of poverty, but you are rich. लेकिन यीशु मसीह स्मरणा की कलीसिया को ये कह रहे हैं कि तुम चाहे दरिद्र हो, तुम दरिद्रता के कलेश से होकर जा रहे हो, लेकिन तुम आज धनी हो। Because they valued spiritual things, क्योंकि तुमने आत्मिक चीजों के ऊपर ध्यान लगाया, eternal things. अनंत काल की चीजों पे ध्यान Now, लगाया। verse 7 in 1 Corinthians, first chapter says, so that you are not lacking in any spiritual gift as you wait for the revealing of our Lord Jesus Christ. 7वीं आयत में ऐसा लिखा है, यहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोते रहते हो। No, this is another gift. ये एक और वरदान है, This is another richness. ये एक और धनी होने की निशानी है। I'll just give my example. There are many pastors, many believers who do it. मैं अपनी मिसाल दे रहा हूँ क्योंकि बहुत से प्रचारक अपनी मिसाल देते हैं। They do also like that. ऐसे ही करते हैं। When we pray for sick people, जब हम बीमारों पे हाथ रखते हैं, when we pray, प्रार्थना करते हैं, when we pray any person who is going through some trouble or affliction, जब हम किसी ऐसे इंसान के लिए प्रार्थना करते हैं जो क्लेश से होकर जा रहा है, we simply pray. हम साधारण तौर पे प्रार्थना करते हैं And our prayers are answered. और प्रार्थनाओं के उत्तर मिल जाते हैं। He's healed. वो इंसान जो है वो चंगाई पा लेता है, He's blessed. उसे बरकत मिल जाती What is है। it? ये क्या है? This is a spiritual gift. ये एक आत्मिक वरदान So है। I'm much richer than the rich people of this world. इसलिए मैं आज उन लोगों से कहीं धनी हूँ जो संसार में धनवान है। So if you are also in Jesus Christ, यदि आप भी आज यीशु मसीह में हैं, you are much richer than those people who are rich in this world. तो आप दुनिया के जो धनी लोग हैं उनसे कहीं ज्यादा धनी है, Because you have been given grace, क्योंकि आपके पास अनुग्रह है, you have been given the knowledge, आपके पास ज्ञान है, you have been enriched in speech, आप वचन में प्रबल किए गए हैं, and then you are not lacking any spiritual gift. आप Hallelujah! किसी भी आत्मिक वरदान में कम नहीं है। See, that's the beauty of our Lord Jesus Christ. यही हमारे यीशु मसीह की एक खूबसूरती है। So I want to encourage today who are the listeners that we are rich in Christ Jesus. आज मैं सुनने वालों को उत्साह देना मांगता हूँ कि हम यीशु मसीह में धनी हैं। Then also he says he will also strengthen you to the end so that you may be blameless on the day of our Lord Jesus Christ. This is another richness. एक और जो बरकत है वो ये लिखी है कि परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे यीशु मसीह की No, संगति I like you to read verse 8. Verse 8. 8 आयत, Yes. वह तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा। Wow, many people are afraid of so many things today. आज कितने लोग हैं जो कितनी चीजों से कितनी बातों से डरे हुए हैं। Especially this coronavirus. आजकल कोरोना वायरस से डरे हुए हैं। Even in my community, in my society, in my hometown, so many people are just afraid and afraid. हमारे समाज में, हमारे ग्रुप में
हमारे शहर में, in my church too, हमारे कलीसिया में, maybe in my family too, हमारे परिवार में भी हो सकता even है, my relatives, हमारे रिश्तेदारों में भी हो सकते maybe हैं, my children. मेरे बच्चे भी हो सकते हैं. But we need to understand that He will also strengthen me and you to the end. लेकिन हमें ये भी समझना है कि यहाँ पर लिखा हुआ है 9वीं आयत में, That's the 8वीं आयत में, richness. That's the कि richness. वह तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा. Oh, I just praise God. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना मांगता हूँ. Because I'm not speaking or uttering these words just like that. मैं ये शब्द जो है ऐसे ही नहीं बोल रहा. This is the Bible. ये वचन है, बाइबल है. This is given to the believers. ये जो विश्वासियों को दी गई है, This is given to the ये churches. कलीसियाओं को दी गई है. Now this was given to the church of Smyrna. ये स्मारना के चर्च को दिया गया है. So we don't need to be afraid we are rich. आज हमें किसी चीज को डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम धनी हैं. So if you want to understand the complete term of richness, यदि आप धनी होने को समझना मांगते हैं, then you need to open 1 Corinthians chapter 1 तो आप पहला कुरिन्थियां पहला अध्याय खोलें and read these many verses which I have just read from verse 4 to 8. तो आप पहला कुरिन्थियां पहला अध्याय 4 से 4 से लेकर 8 तक पढ़ें. You will understand the terminology of richness. तो आप ये शब्द जो है धनी होना, इसका सही मायना, सही अर्थ समझेंगे. You know, if you want to earn money, यदि आप पैसा कमाना मांगते हैं, you start looking for a job, आप नौकरी ढूंढ रहे हैं, you go to some factory, आप किसी फैक्ट्री में जाते you go हैं, to some institution, आप किसी अदारे में जाते हैं, you hire any sort of a job which is available here in your hometown area, आप कोई भी नौकरी के लिए इधर उधर तलाशते हैं so that you have money. ताकि पैसा आए घर में. Now, if you want to be rich, लेकिन यदि आप धनी होना मांगते हैं, if you want to understand the spiritual values, यदि आप आत्मिक वैल्यूज को समझना मांगते हैं, eternal values, अनंत काल की बातों को समझना मांगते हैं, you need to register yourself with the word of God, तो आपको वचन के साथ रजिस्टर करना पड़ेगा. and you need to trust 1 Corinthians. You need to trust the entire Bible. आपको इस बाइबल के ऊपर विश्वास करना होगा. Then you need to trust these words which I am reading. और फिर आपको इन वचनों के ऊपर विश्वास करना होगा. Now I come to verse 30. How we are rich? अब मैं 30 Yes. अब मैं 30वीं आयत पे आता हूँ. Now I want to make you understand myself and to all the listeners. मैं आपको भी समझाना मांगता हूँ और अपने आप को भी बताना मांगता हूँ. How we are rich? हम रईस कैसे हैं, धनी कैसे हैं? Because Jesus is our source of life. क्योंकि यीशु हमारे जीवन का स्रोता है. Let's read verse 30. पहला कुरिन्थियां पहला अध्याय 30 आयत. It's written, He is the source of your life in Christ Jesus, who became for us wisdom from God. Verse 30, yeah. 30 परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा. He is our wisdom. वो हमारा ज्ञान है. See, he says that, then he says, and righteousness. और हमारी धार्मिकता है. And then our sanctification and redemption. और हमारी पवित्रता है, हमारा छुटकारा है. Oh, see the richness of God. देखिए कि परमेश्वर में कितने धनी हैं आप. Much richer than the earthly money. दुनिया के धनी लोगों से कितने अधिक धनी हैं आप. दुनिया के धन से हम लोग कितने धनी हैं. बोलिए हालेलुया. So this is how it explains about that, about the richness. So ये धनी होने के बारे में आपको दिखा रहा है. So बता रहा है. listeners, सुनने वालों, you are not poor. आप गरीब नहीं हो. You are not going through affliction of poverty. आप क्लेश की दरिद्र से होकर नहीं जा रहे. It might be temporarily, ये थोड़े समय के लिए हो सकता है, but you are rich. लेकिन आप धनी हैं. That's what he said. वचन में ऐसे ही लिखा है. I made you understand very clearly. मैंने आपको सब कुछ समझाया So अभी. claim your richness. तो अपनी इस धनी होने के दावे को. वायदे को आप पकड़ो, थामो. You इस पे कब्जा करो. yes, you can claim your richness. आप इसके ऊपर कब्जा करो. You can claim your rights. आप इसके ऊपर काबू करो, कब्जा करो, क्योंकि आपका अधिकार है. Yeah, because God has given to every believer. क्योंकि हर विश्वासी को ये अधिकार दिया गया है. Now I want to come to the second part of my message. अब मैं दूसरे हिस्से के ऊपर आ रहा हूँ अपने इस संदेश के. Verse 10. 10वीं आयत. Here he says, don't be afraid what you are about to suffer. प्रकाश की पोथी दूसरा अध्याय Verse 10. 10वीं आयत. I will request Penny to read it. यहाँ पर लिखा है, Uh, जो दुख तुमको झेलने होंगे उनसे मत डर. yeah. क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा. You see,
we really need to meditate and understand the depth of the scriptures, हमें वचन की इन गहराइयों को समझना होगा, word by word. एक एक शब्द लेकर. First of all, I want to encourage you that what was 10 days period here. पहली बात जो मैं आपको समझाना मांगता हूँ वो ये है कि 10 दिन का जो समा दिया गया है वो क्या है. It's I told you last on the 19th of April in my message मैंने 19 अप्रैल आपको अपने संदेश में बताया था. that it describes about a brief period. ये बताता है कि थोड़ा समा. So 10 days means it's a brief period. So 10 दिन का मतलब है छोटा समा. I get a very good example here in Genesis chapter 24. उत्पत्ति की किताब में यदि हम आए 24 अध्याय, When the marriage of Isaac and Rivka was to be taken place, जब रिबका और इसहाक का विवाह होने वाला था, and his servant, Abraham's servant comes and he finds the girl. और इब्राहिम का जो सेवक था, दास होता है, सेवक होता है, उसे एक लड़की मिलती है. And when he was talking to the girl's parents, और जब उस लड़की के माँ बाप से बात कर रहा है, they were forcing him to stay for sometimes a few days more. तो वो जोर लगाते हैं कि वो कुछ दिन उनके पास ठहर जाए. Just read it, 55 verse. 55 आयत. Let me read it in English first. 55 आयत. Her brother and her mother said, "Let the girl remain with us a while, at least 10 days." रिबका के भाई और माता ने कहा, कन्या को हमारे पास कुछ दिन अर्थात कम से कम 10 दिन और रहने दो. A few days means 10 days. थोड़े दिन का मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है 10 दिन. Or in other words, 10 days means a few days. या दूसरे शब्दों में कह लो 10 दिन का मतलब है थोड़े दिन. So don't take it literally, 10 days means 10 days. A few days. इसलिए ये मत सोचो कि यहाँ पर 10 दिन का मतलब 10 दिन ही है. In Acts 25, अगर हम प्रेरितों के कर्तव्य में जाएं, there also we find such kind of reference. और वहाँ पर भी ऐसा एक हवाला मिलता है. That's a chapter 25, प्रेरितों के कर्तव्य verse 6, 25 अध्याय, verse 6. 6वीं आयत. 6वीं प्रेरितों के कर्तव्य Chapter 25, verse 6. 25 अध्याय, Verse 6. 6वीं आयत. He says here in Acts chapter 25, verse 6, after he had stayed among them not more than 8 or 10 days, he went down to Caesarea. The next day, he took his seat on the tribunal, order Paul to be brought. I'll request Penny to read in Hindi. 6वीं अध्याय प्रेरितों के कर्तव्य 25 अध्याय 6 आयत. वहाँ लिखा हुआ है 24 की. Yeah, ठीक है. उसके बीच कोई 8-10 दिन रहकर वह कैसरिया चला गया और दूसरे दिन न्याय आसन पर बैठकर पौलुस को लाने की आज्ञा दी. See, 8-10 दिन are a few days. So 8-10 दिन जो का अर्थ होता है कि थोड़े दिन. So I think the students of the Bible will understand this term. इसलिए मैं सोचता हूँ कि जो बाइबल के अध्ययन कर रहे हैं वो समझ जाएंगे इस बात को. Lord Jesus is telling that you have to suffer for a short while. यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम्हारा जो क्लेश है वो थोड़े समय का है. But don't be afraid. लेकिन डरो मत. Because he says that don't be afraid means that you have to trust in God wholeheartedly. ना घबराने का मतलब ये है कि हमें पूर्ण रीति से परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना है. You have to trust in the Lord Jesus Christ. हमें यीशु मसीह के ऊपर पूरा भरोसा करना है. You have to trust the words of the Lord Jesus Christ. जो उसके मुंह के निकले हुए वचन है उनके ऊपर भरोसा करना है. And we have to acknowledge that what he said he will do like that. और हमें ये मानना है, यकीन करना है कि जो उसने कहा है वैसे ही होगा, वैसे ही करेगा. Sometimes we pray. कई बार हम प्रार्थना करते हैं. We read the word of God. हम वचन भी पढ़ लेते हैं. We believe. हम विश्वास भी कर लेते हैं. But that fear remains inside our heart. लेकिन वो डर कहीं ना कहीं हमारे अंदर वास करता है. I remember a story of a mother and a son. मुझे एक कहानी याद आ रही है एक माँ और एक बेटे की. Mother was cooking supper. माँ जो थी वो खाना बना रही थी. And she wanted a can of tomatoes from the garage. और वो उसे एक टमाटो प्यूरी का का डिब्बा चाहिए था. डब्बा चाहिए था गराज से. And he asked his son Johnny, please go in the garage and fetch that can of tomatoes for me. उसने अपने बेटे से कहा कि जाके मेरे लिए वो टमाटर का डब्बा लेकर आओ. And the boy answered, Mom, there is darkness in the garage. It's a dark over there. बेटे ने जवाब दिया कि वहाँ बड़ा अंधेरा है. I can't go alone. मैं अकेले नहीं जा सकता. Oh, I'm afraid. मुझे डर है. Oh, mother said, please go. There is nothing. You go and get it fast, please. उसकी माँ ने कहा कुछ नहीं है, जाके भाग के लेकर आ. He said, no, there's a dark in the room. उसने कहा नहीं, वो बहुत अंधेरा है वहाँ पर. She said, don't worry, Jesus is there. उसने कहा कोई बात नहीं, यीशु मसीह वहाँ पर है. Reluctantly, the boy went to the garage. डरते डरते जॉनी चला गया गराज में. And there was darkness in the room. वहाँ बहुत अंधेरा था गराज के अंदर. He still had that fear.
उसके अंदर अभी भी डर था। He didn't have that courage to go inside and fetch that can of tomatoes. उसके अंदर अभी भी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि बिल्कुल अंदर जाकर वो टमाटर का डब्बा लेकर आए। He simply stood at the entrance. वो दरवाजे के पास खड़ा रहा। And you know what did he do? और आपको पता उसने वहाँ क्या किया? He said, Jesus, उसने कहा, यीशु मसीह, can you hand me that can of tomatoes? क्या आप मुझे वो टमाटर का डब्बा दे सकते हो? दे सकते हैं? See that? Why I'm repeating, why I'm saying this example? मैं ये मिसाल क्यों दे रहा हूँ? We trust God. हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा जरूर करते We हैं, claim a lot. हम बड़े दावे करते हैं, But still there is a fear inside. Down our heart there is a इन fear. कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में थोड़ा सा डर हमारे अंदर बना रहता है। Mother assured the boy there is a Jesus in the garage. माँ ने बच्चे को आश्वासन दिया था कि वहाँ यीशु मसीह हैं। He should have understood that what mother said. Oh, okay, I'll go and bring it. उसको ये समझना चाहिए था कि माँ ने जो कहा ऐसा ही होगा और उसको चले जाना चाहिए था और ले आना But he चाहिए था। had a fear in his heart. लेकिन उसके मन में एक डर था। He said, Jesus, please hand me that can of tomatoes. उसने कहा, यीशु मसीह आप मुझे वो टमाटर का डब्बा पकड़ा दें। I know it's a very simple faith, ये साधारण सा एक विश्वास but है, I'm very sure it didn't happen like that. लेकिन ऐसा नहीं हुआ। What I'm saying, what is my point here? मेरा कहने का मतलब क्या है? Jesus is telling us in the time of turmoils, in the time of sufferings, in the time of sorrows, we don't need to be afraid. यीशु मसीह यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जब क्लेशों का समय हो, परेशानियों का समय हो, दुखों का समय हो, दुखों का समय हो, we should be ready to face that. तो हमें इनका सामना करने के लिए तैयार होना चाहिए, Because it is just for a few days. क्योंकि ये थोड़े समय के लिए है, It's not for a longer period. ये ज्यादा लंबा समय तक नहीं चलेगा। What Jesus says, यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? He fulfills His क्योंकि promises. जो वो कह रहे हैं वो पूरा करेंगे। Only a few days. फ्यू डेज, थोड़े दिन के So लिए। be of good courage, my brothers and sisters, in this time of lockdown. इसलिए मेरे भाई और बहनों ढाढ़स बांधो। Lockdown period may continue. It may go longer. लॉकडाउन का समय जो है थोड़ा बढ़ भी सकता है, We need to take precautions. हमें कुछ एहतियात भी बरतने हैं, But we need to trust the Lord Jesus Christ लेकिन wholeheartedly. सबसे बढ़कर हमें यीशु मसीह के ऊपर पूर्ण रीति से विश्वास करना है। I don't want to say that somebody will die, anybody can die. मैं ये नहीं कह रहा कि कोई मरेगा, कोई भी मर सकता है. मर भी सकता है कोई, We should be ready to meet the Lord Jesus Christ. और हमें तैयार रहना चाहिए यीशु मसीह को मिलने के लिए। That's what he says here. Don't be afraid. इसीलिए वो ये कह रहा है घबराओ मत। He says, be faithful. वो कह रहा है वफादार रहो। You read that verse. आप उस आयत को पढ़ें, You read that verse, brothers and sisters. भाइयों बहनों उस आयत को पढ़ें आप। He says, I want to read it. He says, don't be fear what you are about to suffer. Beware, the devil is about to throw some of you into prison so that you may be tested, and for 10 days you will have affliction. Be faithful unto death. तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने, शैतान तुमको कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना पड़े। Yes. प्राण देने तक विश्वास योग्य रहो, जो No. मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा. Now, first of all, Jesus encouraged the church. पहली चीज जो है यीशु मसीह कलीसिया को उत्साह दे रहे हैं। Jesus is encouraging the believers today also. यीशु मसीह आज भी विश्वास करने वालों को उत्साह दे रहे हैं। He said, don't be afraid. उसने कहा घबराओ मत, If you have to be tested, यदि तुम परखे जाओगे get ready. तो तैयार रहो, Be ready. तैयार रहो। Ready means that you don't have to show a sign of fearfulness. तैयार रहने का मतलब यह है कि तुम घबराहट मत दिखाओ। It will come, it is natural as it came in the life of that young boy Johnny. घबराहट आएगी जरूर, जैसे जॉनी के जीवन में आई, But we have to trust the Lord Jesus लेकिन Christ फिर भी हमें यीशु मसीह के ऊपर एतवार करना, in भरोसा that very करना है। situation. उन हालातों में भी भरोसा करना है। Jesus is encouraging to the church of Smyrna. यीशु मसीह स्मरणा की कलीसिया को उत्साह दे रहे हैं। He said, be faithful until कह death. रहे हैं कि मृत्यु तक विश्वास योग्य Be बनो। faithful until death. मृत्यु तक विश्वास योग्य Are, बनो। are you ready as Christians, my brothers and sisters? मेरे भाइयों और बहनों, क्या आप तैयार हैं? If you're really ready, then you will have to face everything courageously. और यदि आप तैयार हैं तो आपको सब कुछ दिलेरी के साथ हर चीज का सामना करना You have to पड़ेगा। be cautious and use your wisdom. आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बुद्धि इस्तेमाल करनी पड़ेगी। I want to tell you a very true story about a faithful Christian. मैं आपको एक सच्ची कहानी बताना मांगता हूँ, एक अच्छे मसीही की। He was a faithful preacher of the gospel. वो एक बड़ा वफादार प्रचार करने वाला था, सेवक था। He was caught in south of Spain. वो स्पेन में पकड़ा गया, He was put into the prison. जेल में डाला गया, When he was in the prison, और जब वो जेल में था there were many people like communists and anarchists. तो वहाँ पर कई कम्युनिस्ट थे और कई जैसे जो दंगा फसाद करते हैं वो लोग वहाँ पर जेल में
डाले गए थे। You know what he noticed? उसने क्या देखा? These anarchists and communists, they started writing some curses against the captors of those jail. वो जेल खाने की दीवारों के ऊपर वो बड़ी गालियां लिख रहे थे और कई गलत शब्द लिख रहे थे दीवारों के ऊपर। These anarchists and communists. ये जो दंगा फैलाने वाले थे और कम्युनिस्ट लोग जो थे, Since he was a faithful preacher of the gospel, क्योंकि एक वफादार प्रचारक था सुसमाचार का, he got an idea. उसके मन में ख्याल आया, If they are writing the curses on the wall, अगर ये वहाँ पर शराब लिख रहे हैं और भद्दे शब्द लिख रहे हैं दीवार के ऊपर, I'll write something else. तो मैं भी कुछ लिखता हूँ। He wrote one wonderful verse from Gospel Matthew chapter 10. उसने मती 10 अध्याय से एक आयत लिखी दीवार You पे। remember Jesus said, fear not them which kill the body, आपको वो आयत याद है जिसमें लिखा है कि उनसे मत डरो जो शरीर को घात करते हैं, but fear from him who can destroy body and soul and put it into hell. उनसे डरो जो शरीर और आत्मा उससे का, डरो. उससे डरो जो शरीर और आत्मा का घात करके तुम्हें नरक में डाल सकते हैं। And then he wrote John chapter 3 verse 16 on that same wall. फिर उसने यूहन्ना 3:16 उस दीवार पे लिख दिया। When he wrote those two verses, जब उसने वो दो आयतें लिखी, among them was a school teacher. वहां पर एक स्कूल का अध्यापक था, He wrote those verses. उसने वो आयतें पढ़ी, He became friendly with the preacher. वो उस प्रचारक के साथ दोस्ती हो गई। To cut the story short, एक कहानी को अगर मैं छोटी कर दूं, this school teacher became the follower of Jesus Christ because Yeah. of those words, स्कूल टीचर जो था ये यीशु मसीह का चेला बन गया सिर्फ उन शब्दों के कारण। because of those two verses. वो दो आयतें जो लिखी गई थी, And you know what happened? और फिर आपको पता आगे क्या होता है? Within a few days, he started growing in Jesus कुछ Christ. दिनों के अंदर ही वो बढ़ने लगा। After यीशु some time, there came a message. मसीह। कुछ दिनों के बाद एक संदेशा आया, Certain these jailer, the fellow men who are in the jail, कि जो लोग जेल में थे, he like this school teacher would be shot. कि ये स्कूल टीचर जो था जो जेल में था, उसको गोली मार के खत्म कर दिया जाएगा। Before his death, लेकिन मृत्यु से पहले he came to this faithful preacher. ये इस प्रचारक के पास आया He told him, और उससे कहा, "Today I'm going to be shot. आज मुझे मारा जाएगा। I don't want to die, मैं मरना तो नहीं मांगता, but I tell you, लेकिन मैं ये कहना मांगता हूँ, inside my soul, मेरी आत्मा के अंदर I have so much sweet assurance मुझे बड़ी तसल्ली है that after my death, कि मरने के बाद I will be in heaven with Jesus कि Christ." मैं यीशु मसीह के साथ आज स्वर्ग में होऊंगा। Oh, what a great faithfulness of this faithful preacher. कितनी वफादारी है उस वफादार प्रचारक की। He was in the jail. वो जेल में है, He got an opportunity लेकिन वहां पर भी उसको एक मौका मिल गया। among jailers. जेल में कैदियों के बीच में He wrote those wonderful two scriptures, उसने दो इतने सुंदर वचन लिख दिए वहां पर, and it changed the life of और- one person. और एक इंसान का जीवन बदल गया। We have to be faithful like that. हमें भी ऐसे ही वफादार बनना है। Now, the last thing which Jesus says here, आखिरी चीज जो यीशु मसीह कह रहे हैं, you know, this is very important. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। He says that we have to be faithful until death. वो कह रहा है कि हमें मृत्यु तक विश्वास योग्य Now, बनना he, पड़ेगा। he normally repeated one word in the Gospels and even Revelation, he who has ears. एक चीज जो वो बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं जिसके पास कान है वो सुने। Even in Gospels, he said the same. सुसमाचार की पत्रियों में, सुसमाचार में भी यही लिखा है। Here also he says in verse 11, that's my last verse today. और 11वीं आयत में जो आखिरी आयत है वहां पर भी वो यही कह रहा है, He says, let anyone who has an ear listen to what the Spirit is saying to the churches. वहां लिखा हुआ है कि जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। Spirit is saying to the churches, आत्मा जो है वो कलीसियाओं से कह रहा है whoever conquers will not be harmed by the second death. कि जो मृत्यु क्योंकि जो जय पाएगा वो दूसरी मृत्यु से उसकी हानि ना होगी। Now he says, he who conquers. यहाँ पर लिखा है जो मृत्यु के ऊपर जय You have पाएगा। to note the words here. तुम्हें ये शब्द देखने पड़ेंगे ध्यान Whoever से। conquers. जो मृत्यु के ऊपर जय पाए, If you have to be conquers, यदि आप जयवंत होना मांगते हैं you have to fix your eyes only on one thing, तो आपको अपनी आंखें एक ही चीज के ऊपर लगानी होगी, not here and there. इधर उधर नहीं। When we put our eyes here and there, जब हम अपनी आंखें इधर उधर लगाते हैं we lose our target and we lose our aim. तो हम अपना निशाने से हमारा ध्यान भटक जाता है, We miss our goal. हम अपने निशाने से चूक जाते हैं। Because when we become conquerors over something, जब हम जयवंत होते हैं किसी चीज के ऊपर we get a reward. तो
तो हमें एक उसका रिवॉर्ड मिलता है, इनाम मिलता है। Here the reward is that the second death will not be harming the conquerors. यहाँ पर ये लिखा है कि जो दूसरी मृत्यु है, वो जो जेतु है, जो विजयी है, उनके ऊपर उसका कोई असर नहीं होगा। We normally don't think about the second death. हम दूसरी मृत्यु के बारे में सोचते ही नहीं है। We think normally about the only first death and we continue to be fearful. हम सिर्फ इस शारीरिक मृत्यु के बारे में सोचते हैं और हम डर जाते हैं। And we continue to be fearful. और हम डरे रहते हैं। And then we don't become conquerors, rather we lose the reward. इसीलिए हम जयवंत नहीं होते और उस इनाम को गवा देते हैं। Now, if you want to be conquerors, यदि आप जयवंत होना मांगते हैं, I have repeatedly sharing my experience of the different servants of God. मैं यहाँ पर अपने तजुर्बे मैंने आपके साथ बांटे हैं और कई प्रभु के लोगों के बारे में आपसे जिक्र किया। I've tried my best to open the scriptures so that you may understand very मैंने easily. वचन खोल के आपको समझाया ताकि आप इन चीजों को समझ लो। If you remember, especially my congregation, मैं अपनी कलीसिया से कह रहा हूँ, I used to give one example in the church. मैं अक्सर एक मिसाल दिया करता Today हूँ। also I want to give the same example so that other may also understand. आज भी मैं वही मिसाल फिर देना मांगता हूँ ताकि सब इस बात को समझें, सुनने वाले। Okay, that would be more easy for you to understand. If you see my status on my WhatsApp, अगर आप मेरा व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस देखें, not today's status, आज का नहीं, general status, जनरली जो स्टेटस में डालता हूँ, there is a leopard, a cheetah. उस स्टेटस में एक चीता है, He is catching a prey. वो अपने एक शिकार को पकड़ रहा है। And that is what I want to give an example today. और वही मिसाल मैं आपको देना मांगता हूँ। You know, cheetah runs at the speed of 70 miles per hour. चीता जो है बहुत तेज रफ्तार से दौड़ता है। 70 miles per hour. 70 मील मील की रफ्तार से. की रफ्तार से। At the meal time, normally it is afternoon meal time. और दोपहर के समय वो जरूर खाना ढूंढता है, Because his meal time is normally in afternoon time. क्योंकि दोपहर के समय उसका खाने का समय होता है। When he goes to find out something for his lunch, जब वो शिकार के लिए जब निकलता है, he sees a big crowd of animals. तो वो देखता है कि You call it herd. जानवरों का झुंड देखता है। And then he fixes his eyes only upon one animal, और वो उन सब में से एक जानवर के ऊपर अपना निशाना लगाता है, particularly the deer. और ज्यादातर वो हिरन के ऊपर अपना ध्यान रखता है। And deer also runs with a great speed. और हिरन जो होता है वो भी बड़ी तेज रफ्तार से दौड़ता है, Cheetah runs also with great speed. और चीते की भी रफ्तार बहुत तेज होती When है। he follows his prey, जब वो अपने शिकार का पीछा करता है, there are other animals in the herd. कई और भी जानवर होते हैं उस झुंड में। Listen it very carefully, please. आप ध्यान से सुनो इस बात को। Here and there he finds many other animals. वो इधर उधर कई और भी जानवरों को देखता है, But you know, पर आप जानते हैं, he singles out only one लेकिन prey. वो सिर्फ एक जानवर को अपना शिकार बनाता है। Maybe he runs very fast. इसलिए शायद कि वो बहुत तेजी से लड़ता है। No, 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 भागता no. है। Maybe that deer or that prey runs very fast. क्योंकि हिरन जो है बहुत तेजी से भागता है। शायद कि वो बहुत तेजी से भागता है, उसके बावजूद भी वो इधर उधर अपनी आंखें नहीं लगाता है. When he sees other animals, जब वो और जानवरों को देखता है, he doesn't leave his prey. तो वो अपने निशाने को, अपने शिकार को छोड़ता नहीं है। It could be easier for him to fetch out one animal from that herd very easily. वो उस झुंड में से एक जानवर बड़े आराम से निकाल सकता है, But he doesn't go after those animals. लेकिन वो उनके पीछे नहीं जाता। He goes after his prey whom he has fixed his eyes or whom he has singled out. उसी के पीछे जाएगा जिसके ऊपर उसकी नजरें हैं, जिसके ऊपर उसकी आंखें हैं, और जिसको उसने चुन लिया, उसी का पीछा करेगा। And then finally he catches it. और अंत में उसी को पकड़ लेता है वो। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और what I want to say here, मैं यहाँ पर क्या कहना मांगता हूँ, when we are following Jesus Christ, जब हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, when we claim and proclaim that we are his followers, जब हम ये दावा करते हैं कि हम उसके चेले हैं, उसके पीछे चलने वाले we हैं, need to learn from this example. हमें इस मिसाल से कुछ सीखना है। We need to be conquerors. हमें जयवंत होना है। We need to go to Cheetah and learn from his हमें experience. चीते से सीखना है। We don't need to be the quitters. हमें हाथ खड़े नहीं करने चाहिए। We need to be considering our ways. हमें अपने जो तरीके हैं उनके ऊपर थोड़ा सा सोचना चाहिए, And then learn and be conquerors. और सीखने के बाद फिर जयवंत होना चाहिए। No matter if we suffer for a short while. ये मायने नहीं रखता कि हमें थोड़ी देर के लिए क्लेश जरूर उठाना पड़ेगा। God bless you, brothers and sisters. परमेश्वर आपको आशीष दे। You need to be faithful.
आपको वफादार होना है, You need to be strong in your faith. आपको विश्वास में समर्थी होना है, You don't need to be afraid. आपको डरना नहीं है, You need to be conquerors. आपको जयवंत होना है You need to learn from the example of cheetah. और आपको चीते के एग्जाम्पल से सीखना है। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। In coming days, we'll start studying about the third church. आने वाले समय में हम तीसरी कलीसिया के बारे में अध्ययन करेंगे। My prayer is this afternoon मेरी प्रार्थना आज इस दोपहर के समय to all the listeners, सारे सुनने वालों के लिए, including me, अपने लिए भी, may God give us that strength प्रभु हमें वो सामर्थ्य दे that we may be the conquerors, कि हम जेतु जीवन जिए, so that the second death may not harm us. ताकि दूसरी जो मृत्यु है वो हमारा कोई नुकसान न Let all पहुंचाए। the listeners, आज सारे सुनने वाले all those who are watching it, जो आज देख रहे हैं इस संदेश को, say amen आमीन कहें, and hallelujah, हालेलुया कहें, and say that we are going to be conquerors. और ये कहें कि आज हम जयवंत होंगे। Amen. आमीन। Let's pray. हम प्रार्थना करें। Father God, I thank you for this beautiful time. प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। Thank you once again for Penny who translated the word मैं of God. धन्यवाद करता हूँ पेनी के लिए जिसने इस अनुवाद किया। Thank you, Father, for the team who sang, who worshipped you, Lord. हम इस टीम के लिए भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने गा बजा कर आपकी आराधना की। Father, thank you for giving us strength अब धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें सामर्थ्य दिया that we could open your scriptures. कि हम आपके इस वचन को खोल सके, We could understand it, Lord. हम इसको समझ सके, We could explain it, Lord. हम इसके ऊपर व्याख्यान कर सके। I pray this afternoon. मैं प्रार्थना करता हूँ Let- आज इस दोपहर के समय Let all the listeners, सारे सुनने वाले, all the believers, जितने विश्वास करने वाले हैं, may overcome the fear of death, इस डर के ऊपर विजय पाएं, मौत के डर के ऊपर. मौत के डर के ऊपर विजय पाएं। Especially I pray for all those people who are so fearful because of the coronavirus. खास करके उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ जो कोरोना करके डरे हुए हैं। Father, I pray, पिता मैं प्रार्थना करता हूँ let people come to know the real knowledge of the Lord Jesus Christ, यीशु मसीह के ज्ञान में लोग बढ़े so that they may receive eternal life. ताकि अनंत काल के वारिस बने। Lord, I pray मैं प्रार्थना करता for हूँ our church folks अपने कलीसिया के लिए who are sitting at homes जो घरों में हैं, and who are watching this जो program. आज इसको देख रहे हैं संदेश को। Lord, provide all their needs at their प्रभु homes. उनकी सारी जरूरतों को आप पूरा करें। Who are sick, जो बीमार हैं, who are not able to go to the hospitals because of the lack of doctors. जो अस्पतालों में नहीं जा पा रहे हैं, Lord, provide their all medical care and needs just at their homes, God. प्रभु उनको सारी जो भी उनको जरूरत है उनको घर में ही बैठे मिल जाए। Let all the believers and all the people who are listening to this prayer, जितने विश्वासी आज इस प्रार्थना को, जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, that they may experience the visitation of the Holy Spirit in their lives. आज उस पवित्र आत्मा की भरपूरी को, उसकी पहचान को जाने। Lord, this morning a friend of mine specially requested me to pray for him. आज मेरे जिस मित्र ने आज मुझसे अनुग्रह किया कि उसके लिए प्रार्थना करें, I pray for my friend. मैं उस मित्र के लिए भी प्रार्थना He's करता a हूँ। businessman. वो एक व्यापारी है, कारोबार है उसका। Let his business be flourishing, God. उसके कारोबार के ऊपर आपकी आशीष हो, Let his family be protective under your care, God. उसका परिवार आपकी सुरक्षा में बना रहे। Let all the people who are listening to this message, जितने लोग आज इस संदेश को सुन रहे हैं, they may be flourishing in their jobs, in their businesses. अपने कामों में, कारोबारों में बरकत पाएं। It looks like that if there will be no prosperity. ऐसा लग रहा है कि प्रॉस्पेरिटी नहीं है, But Lord, in your kingdom, nobody lacks anything. लेकिन आपके राज्य में किसी को किसी अच्छी वस्तु की थोड़ नहीं होती। So I pray for all those people who have listened to this message. मैं उन सारे लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ जो आज इस वचन को सुन रहे हैं। Here in my hometown, in the state of Punjab, in India or शहर abroad, में, पंजाब में, हिंदुस्तान में या विदेश में, they all may be richly blessed, as you said that I know the affliction of your poverty, but you are rich. वो आप में धनी हो जाए पिता परमेश्वर, आपसे वो धन प्राप्त करें। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। Let's pray. आइए हम लोग प्रभु की प्रार्थना में चलेंगे। आए हमारे बाप, आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आवे, आपकी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दें, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ़ करें। हमें आज़माइश में न पड़ने दें, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तक आप ही का है। आमीन। इससे पहले मैं बरकत के कलमे में जाऊं, कुछ भेंटें आई हैं मेरे पास, मैं उन भेंटों को प्रभु के सामने रखना चाहता हूं। एक परिवार ने मुझे ये जिसको हम गिनी बैंक बोलते हैं,
टी बैंक। या ओके, आइए हम इसके लिए पैनी के साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जलाली पिता परमेश्वर, आप जो अनादिकाल के परमेश्वर हैं, सामर्थी परमेश्वर हैं, होनी को अनहोनी करने वाले, अनहोनी को होनी करने वाले परमेश्वर हैं। आपके लिए कुछ असंभव नहीं है पिता परमेश्वर। जब आज पिता परमेश्वर संसार भर में एक पिता परमेश्वर ऐसे हालात बने हुए हैं सचमुच में, जबकि लोग आगे आने वाले समय के लिए भी पिता परमेश्वर चिंतित हैं, परेशान हैं। बहुत से लोगों के पिता परमेश्वर काम बंद हो गए हैं, कारोबार ठप हो गए हैं, कईयों की पिता परमेश्वर रोजी रोटी का साधन बंद हो गया है। पिता कितने ऐसे परिवार हैं, कितने ऐसे लोग हैं, घर हैं पिता परमेश्वर, जो आज पिता परमेश्वर इस बात की चिंता में है, पिता परेशान है कि आने वाले समय में क्या होने जा रहा है प्रभु। लेकिन हम ये जानते हैं प्रभु परमेश्वर की जिनका भरोसा, जिनका विश्वास प्रभु आप में है, आप प्रभु परमेश्वर उनको Yes, कभी Jesus. लज्जित नहीं होने देंगे। नहीं होने देंगे। क्योंकि आपके वचन में लिखा है जवान सिंह भूखे रह सकते हैं, लेकिन यहोवा के खोजियों को, डरवियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। Amen. प्रभु परमेश्वर हम इस वायदों को क्लेम करते हैं, इस प्रॉमिस को क्लेम करते हैं आपके खोजियों के लिए, आपके डरवियों के लिए, कि आप उनको किसी भली वस्तु की थोड़ा नहीं होने देंगे। आने वाले समय में पिता परमेश्वर आप उनके लिए पिता परमेश्वर वो साधन उपलब्ध करेंगे कि पिता परमेश्वर वो त्यागे ना रहे, बल्कि उनके लिए पिता परमेश्वर नए द्वार खोले। पिता परमेश्वर जिनकी जॉब्स चली गई, पिता परमेश्वर आप उनके लिए और अच्छे पिता परमेश्वर रिसोर्सेज तैयार करेंगे, सोर्सेज देंगे पिता परमेश्वर, ताकि वो फिर से बहाल हो सके। पिता परमेश्वर आप उनके फाइनेंसेस को पिता परमेश्वर, उनके हाथ के कामों को ब्लेस करें, परिवारों को ब्लेस करें। पिता परमेश्वर आप सब कुछ मुहैया करने वाले, आप यहोवा जेरी परमेश्वर है, Yes, Jesus. जेरी परमेश्वर है, सब कुछ मुहैया करने वाले Yes, परमेश्वर है। Jesus. पिता परमेश्वर आप अकाल में भी रोटी खिलाने वाले परमेश्वर है। Yes, और God. जो पिता परमेश्वर आपके ऊपर भरोसा रखते हैं पिता परमेश्वर, आप उनकी हर जरूरत को पूरा करते हैं। पिता परमेश्वर जिन्होंने ये अपने पिता परमेश्वर भेजा है। धन में से जो भी हिस्सा निकाल के पिता परमेश्वर जो आपके भवन में लेकर आए हैं, आपके लिए पिता परमेश्वर उन्होंने अर्पित किया है, आप उनको दुगना करके लौटाएं प्रभु परमेश्वर, उनके भंडारों को भरे प्रभु। ओ प्रभु परमेश्वर आप उनके कामों को ब्लेस करें, उनके परिवारों में आपकी बरकत आवे। मांगती हूँ सब कुछ यीशु मसीह के जलाली समर्थी नाम से, आमीन। आमीन। मैं चाहता हूं कि वो जो आशीष वचन है आज मैं बोलूंगा नहीं, बल्कि बाइबल में से मैं पढ़ूंगा, जिससे हम लोगों को वो प्रभु की जो आशीष है जो मिल रही है और मिलती रहती है, वो हमें किस प्रकार से बाइबल हमें बताती है। दूसरा कुरिन्थियन उसका जो आखिरी अध्याय है, मैं उसमें से ये वचन को पढ़ने जा रहा हूं। इसमें इस तरह से लिखा है, दूसरा कुरिन्थियन उसका 13वां अध्याय उसके 14वें पद में, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सब के साथ होती रहे। सब लोग बोलेंगे आमीन। थैंक यू ब्रदर्स। देखिए लोग, जीसस थैंक यू।